हेलो एवरीवन, आज मैं डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगी कि डेटा स्ट्रक्चर व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट ऑल programs and codes are there in this particular unit. So this is a third semester chapter in CS and data structure खुद में ही एक subject है. Okay, so first if I talk about what is data structure. So data structure, what do you understand by this? So in this it stores data. Okay, so data structure, data स्टोर, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है. और हम ये भी कह सकते हैं इट ऑर्गेनाइज द डेटा एंड इट helps, it's the technique to organize or store data. Now, so that we can easily what, retrieve from it, or we can access from it whenever we require it. So if I talk about data structure, and secondly data structure, like we have C++, which we have already studied in first semester, and Java, like that only. Data structure is a programming language, what everyone thinks, but no, it's not a programming language even, but it's algorithm. Okay, in this what we use, algorithms. So the set of algorithms so that we structure the data. That's what data structure means. Okay, the sets of algorithms, it's not a programming language like we have C, or we have C++, or we have Java and Pythons and all. And Python is a language oriented language. But if I talk about data structure, so data structure is sets of algorithm, rather it's not a programming language. This much introduction, if it is clear to you, next we will proceed further. Now next we have the steps to solve a problem. If a particular problem is given to you, so how you will solve it first. So see, if this is your problem, okay, now you will be writing its algorithm. Okay, what does you mean by algorithm? Means data structure, what we say. And next you will program it. After algorithm we code it and form a structure. So it, what first it does, it stores data, it organizes data, and also it processes data. Okay, so किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर की सहायता से, right, what we solve it by the steps in a particular sequence or an order. To organize it, we structure data. So that structuring is called what? Data structure. Now if I talk about the logic development in structuring the program, okay, what all logic, okay, what all, if I talk about logic used in structuring the program. So see, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन, if you want, so for that we use logic. We use like the what we say, if you want to cook something, we use ingredients, like, so that ingredients what calls as logic. In the definition of logic is that what, ingredients, you can understand this as ingredients. So logic is something which in a problem we use to solve a particular program. Now next if I talk about, see, प्रॉब्लम के लॉजिक को डेवलप करते समय हम कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं. ओके, ऐसे हवा में प्रोग्राम नहीं बनता है. ऑल राइट, सो see, what is logic, I already told it to you, but now what are the steps which you have to keep in mind while structuring the program. So first is that, see, if I talk about the first step what we use in structuring the program is, see, first if I talk about, see, why do we use program, right? So what a user through the program
actually wants to gain something, what result the user wants. So the result what he wants. The second is that, see, what are the goals behind that particular program. Okay, if the teacher provides you to, you just have to write a program to sort a given list. So the goal behind is that you have to sort it in the ascending or descending order. Okay, so what are the goals behind it? The third step is that the problems, what is the result after that, in the end what result is coming out after it. Now, logic development in a programming process, there are 6 steps. Okay, in program making, like see how I explain you, there are 6 steps. Okay, like your first step is, now you understand it. Okay, understanding, first is your understanding. You, whatever question or whatever you want, you have to first understand it. Okay, and then second is that you have to model it. Okay, see, program का एक मॉडल तैयार करना चाहिए, पहले करा जाता है. ऐसे ही नहीं कि बिना एल्गोरिथम के आप डायरेक्टली विदाउट एनी स्टेप्स एंड ऑल. देयर आर पर्टिकुलर स्टेप्स. सो फर्स्ट you have to memorize, or you have to understand this, then you have to create a model behind, and then afterwards you have to find the errors that what are coming over there. Right now कुछ चल रहा है दिमाग में, अब उसका मॉडल तैयार किया. now what are the errors which are coming in it. all right, and then the fourth is that you have to code it. Okay, and then after coding, then you have to check the impeccable it. Okay, you have to impeccable it. And then afterwards you have to, the 6th step is that you have to write the explanation of the program, whatever the program is given. So वेरिएबल जो वैल्यू को स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल. तो उसी तरीके से हाउ आई हैव taken out the definition of variable by first of all understanding it, and then afterwards I have created a model of, and then error, then code, impeccable, and explanation. Now what I am talking about is variable. Now what is variable? You have already have a mind words in your mind that what is a variable, what is a data type, what is a see, variable is something which stores data. Like a is equal to 6, so a is your variable and 6 is your constant. Right, कि ये है constant, ये है variable. See, whatever I am telling you, you just listen it nicely. Everything will be sorted out. Otherwise बैग आती रहेगी, बैग लाते रहना. all right, so especially in AKTU, for AKTU students, the university which is affiliated with it, mostly bags AKTU में ही आती हैं. So whatever, if you wrote ecology paper of 65 marks, I especially wrote when I was writing my first year semester ecology. So I wrote every answer, my rectification is very nice. So I stored 65 marks. I wrote actually of 65 marks out of 70, but actually what I get is that I got 45 out of what I expected, but I got this. So beyond your expectations, sometimes results come, but you should never stop what you are doing. All right, so what I'm talking about, what is variable? See, variable is something which stores the value. Okay, variable is something which stores the value. And data type, मतलब किसी भी data का type बताना is what data type. Right, so if I talk about data type, see, किसी भी data का type बताना is data type. Like in Python, see, Python, what happen if I want to write, enter the integer value, so I use int. If I have a decimal, so float. Similarly, if I talk about input in Java, we use CDO or STDO, right? Like
right? So no, this is in, I think, in C++. In Java is I have to just memorize, and then afterwards I will tell you how to start a program in Java. In Java, okay. There is some like sysout, so how it ends all. Okay, so acha, now come back to the pointer. First I will teach you data structure, and then afterwards Java, whenever the topic comes, then I will tell you. Now pointer, so हर एक वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है. ऑल राइट, रिमेंबर दिस. सी, if I talk about pointer, so see, every variable has its memory address. हर वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है. मेमोरी एड्रेस, और मेमोरी एड्रेस देखने के लिए what a programmer do, what a programmer do to know the particular address of variable, what he actually do, he see this and okay, this is what your address operator. All right, so this is your address operator. ओके, ये लगाना पड़ता है जिससे कि हमें वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पता चल जाए. दिस मच इज़ क्लियर. लाइक इफ़ आई वांट टू राइट दिस int a printf. अब printf और scanf C++ में यूज़ होता है. अंडरस्टैंड. एंड C++ पाइथन में देखो, पाइथन इज इन 5th semester. In 4th semester you have to do the coding either in C or C++ or in Java, and those students who know Python, they are legends. That's not true. You have to learn web development, then little bit, legency will come in yourself. Now like printf, then if I write address of a then this and d and a मतलब a तो यही है, इस चीज़ का हमें एड्रेस निकालना है तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. ऑल राइट, एंड देन ब्रैकेट्स एंड देन this. All right, and then what the output come? See, what is the output is coming? How is output is coming? If I want to write its output, then address of a, it will come like this. See, such a big number. I have tried on the computer in my lab, so this was coming such a big number. So ऐसे ही बड़े बड़े नंबर आएंगे. So don't be shocked that ये क्या है. ऑल राइट, ये ऐसे ही नंबर आते हैं, इसी को मेमोरी एड्रेस कहते हैं. एंड किसी मेमोरी एड्रेस की हेल्प से अगर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, देन व्हाट विल हैपन, इसी को व्हाट वी से पॉइंटर. सो किसी भी वेरिएबल ए हो चाहे बी हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल का हमको मेमोरी एड्रेस पता करना पड़े तो हम उसको पॉइंटर कहते हैं. एंड पॉइंटर किसी और दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है. ओके, ये भी याद रखना. और हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होता है. ऐसा नहीं है कि किसी का भी कोई एड्रेस हो. आप जिस घर में रहते हैं उसका भी एक एड्रेस है. अब आप रहते हैं गोमती नगर में और आप एड्रेस दे रहे हैं हजरतगंज का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता. सो वेयर एवर यू आर लिविंग, you have, every person have its own address. Now see, syntax of pointer declaration if I talk about, see syntax. अब syntax क्या होता है ये वाली बात तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है. syntax किसे कहते हैं अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा अगर, देन तो फिर कंप्यूटर छोड़ दो. see syntax अगर देखें पॉइंटर का, सो पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे. ठीक है, डेटा टाइप लिख लिया, फिर ये लगाएंगे. ठीक है, एंड देन पॉइंटर नेम लिखेंगे एंड देन दिस साइन. ठीक है, ये नहीं लगाना है, ये लगाना है, ये नहीं लगाना है, ये लगाना है. अंडरस्टैंड? ऑल राइट. सी नाउ आई एम आस्किंग, सी दिस, टेल मी int this ptr and this and this. ये क्या है? एक कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है? ये इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल. कैसे पता चला? पहले ये डेटा टाइप लिखा, फिर ये पॉइंटर नेम लिखा. अगर हम बात करें ये फ्लोट, ये डेसिमल पॉइंटर वेरिएबल है. अगर हम ऐसे लिखें 4 और फिर ये ptr 3 और फिर हम वही लगा दें, तो फिर ये क्या है?
कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है। नाउ सी, किसी इंटीजर ओके डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है तो पॉइंटर भी उसी डेटा टाइप को का होगा। ओ ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो दूसरे टाइप का पड़ोसी का हो। सी, किसी भी इंटीजर का डेटा टाइप वेरिएबल का अगर क्या करना है, एड्रेस होल्ड करना है, ठीक है, अगर हमें इसका एड्रेस होल्ड करना है अगर, तो पॉइंटर भी उसी वेरिएबल डेटा टाइप का होगा, ठीक है। अब अगर हमें एड्रेस होल्ड करना है इंटीजर का, और अगर हमारा वो डेटा टाइप है अगर वो कैरेक्टर, तो ऐसा नहीं होगा। जैसा वेरिएबल होगा वैसा ही पॉइंटर का होगा। मतलब वेरिएबल इंट है तो पॉइंटर भी इंट ही होगा, वो फ्लोट नहीं होगा। अगर आप इंसान के बच्चे हैं तो आपका जो बच्चा होगा वो भी इंसान का ही होगा, जानवर का तो होगा नहीं, ठीक है। सो सी, पॉइंटर किसी की वैल्यू होल्ड करके नहीं रखता है, बल्कि सिर्फ उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है, और उसका एड्रेस जिसका पॉइंटर है, ठीक है। नाउ सी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। सो अगर इतनी बेसिक से भी अगर नीचे बेसिक है, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अब इतना बेसिक समझाऊंगी अगर, तो फिर मैं तो पानी में डूब जाऊंगी, है ना। हाँ, आई विल ट्राई टू give my best, okay. Now see, one thing is very important over here. See, pointer का address hexadecimal number में होता है, always remember this, alright. See, hexadecimal एक चीज़ है जो नोट में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वैसे तो मेरी वैसी नोट्स हैं नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसे करके उसको क्लाउड्स में लिख लो, हेक्साडेसिमल नंबर्स में होता है। पर कुछ कंपाइलर अपना एड्रेस इंटीजर में प्रिंट करते हैं, ऑलराइट। देयर आर सम कंपाइलर्स जो अपना एड्रेस इंटीजर्स में भी प्रिंट कर देते हैं। सी, वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए व्हाट वी यूज़ लाइक दिस, और व्हाट वी यूज़ लाइक दिस। इन फॉर्मेट स्पेसिफिकर्स का यूज़ they use format specifiers. So either they use this or they use this, like, see, if now in the next page, if I talk about what are the uses of pointer, see, I am telling you from basic to basic things so that you can write all the answers, okay. And in MCQs all the questions are coming. If these are not coming in theoretical form, they will come like MCQs, alright. In MCQs like for GATE and all, alright, because in universities theoretical questions are there, and in theoretical questions are also asked in यूनिवर्सिटीज़, ओके। ये आपका स्कूल नहीं है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कि सिर्फ कोडिंग ही कोडिंग होगी, ऑलराइट, क्योंकि खाली डेफिनेशंस एंड ऑल आर देयर, बिकॉज इन विच स्कूल आई बिलोंग, उसमें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ही डेफिनेशंस 2 मार्क्स की पूछ लेते थे, और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ प्रोग्राम। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट यूजेस ऑफ पॉइंटर, सी, फर्स्ट यूज, if I want to ask one thing, what is the first use of it? एड्रेस पता करना और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाना, यही होगा, मुझे पता है, ठीक है। एक सबसे अच्छी मैं दे रही हूँ, कम से कम मैं बताऊँगी, अब 6-7 पॉइंट्स बताऊँगी, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, सभी फंक्शन में एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करना, ये है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फंक्शन में क्या होता है, और अब ये मत कहना फंक्शन में डिग्री होती, ऑलराइट, फंक्शन में डिग्री नहीं होती, वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक था, अच्छा। सी, फंक्शन पे डिग्री कभी नहीं होती है, अच्छा, ये मैथ्स नहीं है, अच्छा लिसन, फंक्शन में अगर हमको एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करनी हो तो पॉइंटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड में होता है कि मेमोरी एलिमेंट्स को एक्सेस करना, है ना, ये तो हमने पहले ही बता दिया था आपको, अगर मेमोरी किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो मेमोरी एलिमेंट का यूज़ करेंगे। द थर्ड इज़ दैट मेमोरी वो डेटा टेबल को संभालने में पॉइंटर, दे आर कैपेबल ऑफ इट, राइट। मेमोरी में जो डेटा की टेबल्स हैं उनको ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ये लोग तो टेबल्स को ये लोग संभाल लेते हैं अच्छे से। देन डायनामिक मेमोरी में क्या होता है, एरे और स्ट्रिंग्स, उनको पास करने में भी देस है दी हेल्प, सो डायनामिक मेमोरी। अब डायनामिक क्या होता है,
डायनामिक और स्टैटिक का भाई इंटर्नशिप वो मिनी प्रोजेक्ट रहता है इसमें। तो मिनी प्रोजेक्ट में टीचर्स एक्सपेक्ट दैट वी मेक प्रोजेक्ट डायनामिक नॉट स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है कि 1-2 पेज बना के दे दिया, बट मेरे कॉलेज में क्या था कि डायनामिक में मुझे चाहिए। ऑल राइट, सो वॉट इज़ डायनामिक, दिस आई विल नॉट बी टेलिंग यू बिकॉज यू नो दी सिली क्वेश्चंस आई विल नॉट बी टेलिंग टू यू। नाउ सी डायनामिक मेमोरी में क्या होता है, में एड्रेस में क्या होता है, एरे और स्ट्रिंग को एड्रेस क्या करता है, पास कर देता है। नाउ ये क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं पॉइंटर्स, ठीक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग, मैं छोटे छोटे ही पॉइंट्स दे रही हूँ, अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख पाओ, ठीक है। बड़े बड़े पॉइंट्स देंगे तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एक और सबसे स्पेसिफिक चीज़ है कि पॉइंटर्स प्रोग्राम के समय में जो हमारी वो तो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको कम करता है। प्रॉब्लम्स मतलब इन अगर हम हिंदी में अगर बोलें, एक वर्ड है जालिलता मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर मतलब जो आते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो जाती है, ऐसा समझ लो, ऐसे हो जाती है, तो उसको कम करता है क्या, कौन कम करता है, हमारा पॉइंटर कम करता है। सो पॉइंटर क्या कम करता है, वी राइट कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी। See, now if I talk about the classifications of data structure, so there are two types of data structure, primitive data structure and non-primitive data structure, ठीक है। अब primitive में क्या आते हैं, int हो गया, char हो गया, float हो गया, boolean हो गया। अब boolean क्या होता है ये तो बताऊंगी नहीं मैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है योर लीनियर एंड सेकंड इज़ योर नॉन लीनियर। लीनियर में क्या आते हैं, जैसे एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गई। लिंक्ड लिस्ट बोला है मैंने, नेस्टेड लिस्ट नहीं बोला है, उसको मत समझ लेना कि एक ही लिस्ट के अंदर सारे लिस्ट होते हैं तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ये लिंक्ड लिस्ट है। लिंक्ड और नेस्टेड में डिफरेंस होता है, दैट आई विल टेल टू यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। हर एक चीज़ नहीं, अच्छा ओके वट एवर। नाउ नॉन लीनियर, ओके। नॉन लीनियर में क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। सो दीज ऑल आर नॉन लीनियर, दीज आर लीनियर एंड दीज आर प्रिमिटिव। तो ये क्लासिफिकेशन पूछा तो नहीं जाता है, बट यू नो दीज आर द कॉमन फॉर योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स। सी यू हैव टू present your answers very nicely in AKTU especially because you get back. See, primitive data structure, if I talk about the first in primitive data structure. See, if I talk about primitive data structure, so in this what happen is that this is directly instructed by the machines, okay, machines, okay, machine instructions। मेरी बैटरी 15% है, सो वट एवर लाइट इज़ कमिंग इट्स विजिबल, इतना भी नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो what I'm talking about primitive data structure, so direct in मशीन से इंस्ट्रक्शंस जो हैं, मशीन से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उससे ये ऑपरेट किया जाता है, ओके, उससे ये ऑपरेट किया जाता है, ओके। सो हम ये भी कह सकते हैं ये या सिस्टम और या फिर कंपाइलर की मदद से ये डिफ़ाइन होता है। ऑल राइट, सो इसमें क्या होता है कि मशीन्स इंस्ट्रक्शंस के जो कंप्यूटर के जो मशीन कोड हैं में जो लिखा गया है, कमांड्स या प्रोग्राम होते हैं जिन्हें वो रिकग्नाइज और एग्जीक्यूट कर सकें। ऑल राइट, सो एक मशीन इंस्ट्रक्शंस में मेमोरी में क्या बाइट्स होता है जो प्रोसेसर को एक मशीन ऑपरेशन करने के लिए कहलाता है, ठीक है। क्या ऑपरेशन के लिए क्या कहलाता है, सी मशीन्स लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सो देयर आर द commands and programs, so recognize and execute it,
what we use? Primitive data structures or the operations which are used in it. Now next is your non-primitive data structure. See, in this what happens कि मशीन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते हैं, ये ठीक है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ड्राइव होते हैं. ऑलराइट, दे आर ड्राइव फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. दे आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड और लिंक्ड और ऑपरेटेड directly through the machine or the instructions of the machines. All right, now in subparts we have linear data structure. Okay, linear, what is linear? Linear एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आइटम्स को what, linear क्या मतलब होता है? लूप. सो linear डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर लूप में स्टोर किया, ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे से क्या हो, एक लाइन या एक रो में क्या हो, ऐड होता रहे, ऐड होता है या होता रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो वेदर इट इज़ एरे और वेदर इट इज़ लिंक्ड लिस्ट और वेदर इज़ अ क्यू और अ स्टैक. ऑल राइट, स्टैक में क्या होता है? एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे, और एक थर्ड वाला भी होता है, वो मुझे पता नहीं. फ्रंट एंड और बैक एंड पे आई एम वर्किंग राइट नाउ. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, इट्स point is in a non-linear, its subpart is non-linear. All right, non-linear, इसमें क्या होता है? इसमें जो डेटा हमारे डेटा आइटम्स हैं, इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज या ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, जिसमें एक डेटा आइटम किसी भी दूसरे डेटा आइटम के साथ ऐड हुआ हो सकता है. ऑल राइट, इसमें दूसरे डेटा आइटम के साथ ऐड हुआ हो सकता है या हो सकता है. सो like in this we have examples like we have trees and graphs. In trees and graphs what happen? Like this we have, like this we have. So in this what happened? All the other data items are linked with each other. All right, now if I talk about the advantages of data structure, so see on the next page, how many pages I am using. This is a spiral copy of 200 rupees. All right, so advantages of data structure. So first if I talk about, see, data processing, common thing, common sense and common thing also. It helps in processing data. ओके, बहुत ही ईजी कर देता है. सेकेंड इज़ दैट हम इंटरनेट का यूज़ करके अपने लैपटॉप या मोबाइल से जो डेटा है वो किसी भी समय एक्सेस कर लेते हैं. राइट, सो इंटरनेट के द्वारा हम अपने लैपटॉप या मोबाइल से डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं. राइट, नाउ द थर्ड स्टेप इज़, इसके द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम बाद में कर सकते हैं. तो इन स्टोरिंग ऑल्सो, स्टोरिंग इट हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क क्या होती है ये तो मुझे, स्टोरिंग इन हार्ड डिस्क. एंड द फोर्थ इज, सी, इसके में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसमें जो डेटा का यूज़ होता है, इसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम से हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पहली बात. और यूज़ प्रोसेस भी हमारा आसान हो जाता है. सो फर्स्ट इज़ दैट वी कैन यूज़ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डेटा, and the using of its data is also very easy. All right, now the fifth is, अगर प्रोग्रामर सही डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा है तो क्या होगा? वो अपना बहुत सारा टाइम बचा सकता है, साथ ही साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग टाइम को भी सेव कर लेता है. किसके द्वारा? डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा. सो डेट फिफ्थ व्हाट वी राइट, दैट टाइम सेविंग
ठीक है। गुड प्रोग्रामर ऑलवेज यूज टाइम। बड़े बड़े कोड बनाने से 2-3 लाइन में कोड बना के हम अगर आउटपुट निकाल सकते हैं तो यू आर द गुड प्रोग्रामर। बड़े बड़े कोड लिखना भी एक तरीका है, आंसर किसी भी तरीके से ला सकते हैं, बट अ गुड प्रोग्रामर ऑलवेज यूज अ शॉर्ट कोड इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग कोड्स। ओके, लाइक एंड द सिक्स्थ इज दैट डेटा स्ट्रक्चर रीयूजेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी इट्स ऑल्सो देयर। एंड इस चीज़ को मतलब ऐसा इसमें है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपके यूज़ कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, मतलब हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मतलब अगर देखा जाए, देखो अगर किसी डेटा में अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना है तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे केवल एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। अब नॉर्मल कोई भी इंसान या प्रोग्रामर अगर देखा जाए वो यूज़ नहीं सकता, क्योंकि बेसिक यूज़र्स उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा? बिजली वाले को नहीं बुलाना पड़ेगा। व्हाट टू whom we have to call? We called an expert who is expert in doing so. Basic users can't do it. Okay. The second is that only advanced users can change data structure. ठीक है, अच्छा एक मैंने देखा था कि IIT कानपुर ने एक बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था तो उस बच्चे ने पूरी वेबसाइट हैक कर दी। तो उसको हैकिंग कहते हैं, मतलब किसी भी डेटा को एक्सेस करना या किसी भी चीज़ को करना विदाउट द परमिशन ऑफ द authentic without the permission of that particular person whose accounts you are using, you are doing something or accessing, तो उसको हैकिंग कहते हैं। फिशिंग किसे कहते हैं ये सब आप पढ़ चुके हैं, अब मुझे अपनी बताने की ज़रूरत है। तो मैंने एक IIT कानपुर का एक एग्जांपल है, तो उस बच्चे ने पूरा वेबसाइट ही हैक कर दी। तो इसको क्या करते हैं कि इससे बचने के लिए हमें हर महीने अपना पासवर्ड क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। ऑलराइट, और अपने हर देखते रहना चाहिए कि अपने मेरी वेबसाइट को क्या हो रहा है, हर मतलब अब रोज़ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आपको हर हफ्ते या हर महीने हर 15 दिन बाद देखते रहना चाहिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई हमारा ये तो नहीं कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो व्हाट वी आर सेइंग दैट ओनली एडवांस यूजर्स can change the data structure. Now the third, if I talk about, अगर हमारा data structure बहुत बड़ा है तो वो उसको क्या मेंटेन और क्रिएट करने में बहुत सारा लोग की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या हो जाता है, अब बहुत सारे लोग आएंगे, वो कोई आपके चाचा चाची तो है नहीं कि फ्री में कर देंगे, तो क्या होगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। All right, now in data structure there are certain operations which I am telling you, and these operations I expect you already know because these are the things of class 11th and 12th. So if I talk about operations, first is your traversing operation. What is traversing? सी डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को केवल एक बार विजिट करना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट को अगर आपके एक समझ लो 1 2 3 4, अब 1 2 फिर एक के पास नहीं जाओगे, हर एक एलिमेंट को अगर एक बार विजिट की जाए तो उसको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड इज सर्चिंग। सर्चिंग किसको कहते हैं, अगर महाकुंभ के मेले में खो गए तो माइक पे वो बोलते नहीं है, अरे टिल्लू। All right, so data structure, see in this if you want to search the particular element, so you have to apply a certain condition to satisfy it. That's what called as searching. So the third is your inserting. You have to insert, like push and pop is there, like in stack. What you mean by push or what you mean by pop? Push means अंदर करना, pop मतलब बाहर निकालना। ठीक है, और अंडर फ्लो क्या कहलाता है, वो सब मैं स्टैक जब हो। अच्छा, एनीवेज इंसर्टिंग, सो डेटा स्ट्रक्चर में सी एक तरीके के एलिमेंट्स को जोड़ना। ऑलराइट, व्हाट वी से इंसर्टिंग। ऑलराइट, डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को कहीं भी ऐड किया जा सकता है। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 3 ही आएगा, 2 के बाद 5 भी आ सकता है। ऐसा किसी ने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया है कि आप एक ही सीक्वेंस आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ योर डिलीटिंग। अब डिलीटिंग किसको कहते हैं, अब मैं सी
मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि लिखने में बहुत इंजीनियर्स आर वेरी कंजूस ऑलराइट, क्योंकि लिखने में नोट्स भी मेरे टीचर बताते हैं। तो मैं COA के जो हैं टीचर मेरे, वो तो भैया एक पीरियड में कम से कम 3-4 पन्ने लिखवा देंगे और मैं लिख लेती हूँ। सो दैट अभी बुक्स वगैरह इशू नहीं हो रही हैं लाइब्रेरी से, अभी होंगी इशू लेकिन अभी नहीं मिल रही हैं, तो मजबूरी में लिखना पड़ता है सो दैट हमारा स्टार्टिंग का मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर बीच में घुस के पढ़ोगे तो पीछे वाला भी समझ में नहीं आएगा और आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा रहता है। तो हम लिख लेते हैं और लिखना भी बस अब जस्ट अ मर्सी ऑन दैट पर्टिकुलर टीचर, लेकिन मुँह जवानी में बता दे रही हूँ, ठीक है। सी डिलीटिंग मीन्स डेटा स्ट्रक्चर में जिससे जो एलिमेंट्स को रिमूव किया जाता है उसको हम डिलीशन कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सॉर्टिंग किसको कहते हैं? सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। मर्चिंग मीन्स, हम मर्चिंग का भी मैं एक प्रोग्राम आपको बताऊँगी C++ में, ठीक है। अच्छा, सो मर्चिंग किसे कहते हैं बताओ? 2 डिफरेंट डेटा फाइल्स में एलिमेंट्स को जोड़ देना, उसको मर्चिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले मैंने प्रोग्राम आज ही मैंने लिखा है, जैसे मतलब एलिमेंट्स की जो लेंथ है एरे की वो बताओ, तो पहले 3 आप बताओगे, फिर उसमें एलिमेंट्स को आप इनपुट करोगे, फिर सेकंड के एलिमेंट्स की आप बताओगे लेंथ, फिर उस एलिमेंट्स को आप इनपुट करोगे, फिर एक आता है कि आप इन दोनों को मर्ज कर दो, तो आपका एक सीक्वेंस में बन जाएगा, ठीक है। एक प्रोग्राम है, मैं अभी बताऊँगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एरे। एरे क्या होता है? व्हाट इज़ एरे? सी, एरे कम्स अंडर नॉन प्रिमिटिव और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? जो प्रिमिटिव से लिंक्ड होता है और मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, एंड ठीक है, लीनियर और डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिमिलर डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। सीक मीन्स ये सिर्फ एक ही तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, या तो ये सिर्फ सभी इंटीजर्स हो, या फिर ये सभी फ्लोट हो, या फिर सभी कैरेक्टर टाइप हो। इसका कलेक्शन क्या होता है? इसका कलेक्शन होता है हमारा फाइनाइट एंड स्टोर्ड एट द एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे ये हमारा क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और ये क्या होता है? डिफाइंड होता है। सी, इफ़ आई राइट पर्टिकुलर प्रोग्राम, सी इफ़ आई टेक लेट, ठीक है, इंट ए, ठीक है, इंट ए इज़ इक्वल्स टू 56, ठीक है। अब इसका हमारा 1000 है, इसका 1001 है, ठीक है। तो इंट 2 बाइट, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट एड्रेस। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ए और ये क्या है हमारा? 56। तो फर्स्ट एड्रेस ही हमारा क्या होता है? एड्रेस होता है हमारा ए का, लाइक 1000 इज़ योर फर्स्ट एड्रेस, है ना। एड्रेस ऑफ एरे इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट एड्रेस। ए का आप क्या कर लो? बादल बना लो, ठीक है, और उसमें लिख दो एड्रेस ऑफ एरे इज इक्वल्स टू फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। ऑलराइट, नाउ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ, बिकॉज ये क्या होता है, वाइवा में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हमारे जो बहुत ही एक्स्ट्रा लेजेंड टीचर्स होते हैं, जो वाइवा लेने आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक। ऐसे ही आपको UPSC में भी मैंने देखे हैं, मिल जाते हैं, छोटा बड़ा वर्णमाला सुनाओ। अब इंसान को ये पता है कि अमेरिका पे क्या हो रहा है, लेकिन इंसान को इंडिया की वर्णमाला नहीं पता होती है। सो बेसिक थिंग्स टीचर्स ट्राई टू अटैक ऑन स्टूडेंट्स। नाउ एलिमेंट्स, सी व्हाट आर एलिमेंट्स? तो ये क्या होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन डेटा, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलिमेंट्स? दे आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन एरे। इंडेक्स क्या होती है? ये भी याद रखिएगा। देखो, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एरे, ठीक है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एरे, ठीक है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट एड्रेस, क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फर्स्ट बाइट का, ठीक है, उसको उसमें आइटम का स्टोर रहता है, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, दिस ऑल्सो आई एम टेलिंग टू यू। सी,
अब बहुत ही थोड़ा गंभीर माहौल है। अब अच्छे से देखो, हाउ टू फाइंड इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर। सी इफ़ आई राइट लाइक दिस, एरे इज इक्वल टू 35, एरे मैं लिख लूँ तब मैं बताती हूँ, ठीक है, वीडियो और बड़ा हो जाएगा। सो वॉट आई डिड ओवर हियर दैट आई ऑलरेडी रोट एवरीथिंग लाइक एरे 1, ये इसका इंडेक्स वगैरह सब कुछ मैंने लिख दिया। सो एंड दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। अब उनको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और ये जो है ब्रैकेट में, दीज आर कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट हाउ टू फाइंड एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन ओवर हियर। सो सी base address, see base address is what? Address of first element, address of first element of array, all right। बेस ही एड्रेस एलिमेंट का फर्स्ट एड्रेस होता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें अब फाइंडिंग द एड्रेस, ठीक है, आप एड्रेस को ही फाइंड करने का फॉर्मूला अगर देखें, देखो देखो एरे, चलो नए पेज में, अब स्कॉलरशिप आई नहीं है मेरी, चलो अच्छा, चलो ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, एरे आई इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ एलिमेंट, ये याद रखना, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। एरे मतलब हमको अगर एरे 2 का निकालना है तो एरे 2 एक करके बता दे रही हूँ खाली। एरे 2 इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस अगर 1000 है प्लस 2 इंटू 2 104, ये हमारा क्या है, एड्रेस, ठीक है। नाउ सी ओवर हियर, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स, पहला है हमारा 1D एरे, दूसरा है हमारा 2D एरे, तीसरा है हमारा 3D एरे। 1D एरे क्या होता है, वो एरे जिसमें सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उसको 1D एरे कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ लीनियर लूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सबस्क्रिप्ट क्या होती है अब ये भी देख लो, देखो बस इसी में हमारे नंबर्स फिल हो रहे हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो यही है हमारी सबस्क्रिप्ट, सिर्फ एक ही, ठीक है। इसको एरे कहते हैं, इसको एलिमेंट्स कहते हैं और इसको इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्स लिख देंगे, 0 से हमेशा इंडेक्स स्टार्ट होती है। ये सब इंसान अगर नहीं आता है तो फिर ये सब मत पढ़ो, छोड़ दो इंजीनियरिंग, छोड़ दो इंजीनियरिंग, मत करो इंजीनियरिंग। इंडेक्स क्या होती है अब ये भी मैं नहीं बताऊँगी। अब आते हैं हमारा सेकेंड 2D एरे। देखो 2D एरे में क्या होता है, 2 सबस्क्रिप्ट होती है, मतलब इसी के ऊपर वो वाला डिब्बा बन जाता है, देखो ऐसे है ना, और इसमें एलिमेंट्स भरे होते हैं सारे, ठीक है। अब देखो इसमें इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। 6 9 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2, ऐसे इंडेक्सिंग होती है। इसमें क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। ये हमारी सेकंड इंडेक्स होती है, ये हमारी फर्स्ट इंडेक्स होती है, ऊपर वाली फर्स्ट इंडेक्स, बगल वाली सेकंड इंडेक्स होती है, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इंट एरे 2 3, और इसमें हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं ब्रैकेट्स में। पहले ब्रैकेट में लिखेंगे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे जो नीचे वाले एलिमेंट, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, देखो अगर 2D एरे है, ठीक है, और कंप्यूटर में अगर मेमोरी एड्रेस होगा उसका स्टोर्ड है, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड एज 2D एरे, ठीक है। इट विल ओनली स्टोर इन 1D वे, ठीक है, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन और कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे करते हैं, देखो ये समझ लो, फिर ना फिर भूल गए तो भूल गए, मत करो इंजीनियरिंग, छोड़ो। सी फर्स्ट इज अ रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रो मेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखो अब जैसे ये हैं एलिमेंट्स हमारे 10 20 30 40 50 एंड 60, ऑल राइट। अब रो मेजर में क्या होता है, एक साथ ये सब लिखे रहेंगे, है ना, कॉलम्स में। कॉलम रिप्रेजेंट मेजर में क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, देखो देखो अच्छा ये लिख देती हूँ मैं, 20 30 40 50 60, ये ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे लिखे जाएंगे।
कॉलम मेजर में क्या होता है, ये ऐसे लिखे जाते हैं, लंबा लंबा लिखा जाता है, देखो ऐसे 10, 40, 20, 50, 30, 60 ऐसे, समझ गए? बस यही है इंजीनियरिंग। अच्छा, A इज़ इक्वल्स टू, इफ़ वी हैव दिस, एक ये है एक ये है, एंड वी हैव टू फाइंड रो एंड कॉलम। अब देखो इसमें ये रो होती है, ये कॉलम होता है ना, ये लोअर होता है, ये अपर होता है ना। नंबर ऑफ रोज कैसे फाइंड करेंगे, देखो नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लो बादल बना के, अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1 इज़ व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ रोज का है, तो या तो रो निकालो या फिर कॉलम निकालो, बात वही है। अगर हम 3D एरे की बात करें तो 3D एरे क्या होता है, 3D एरे जहाँ 3 सबस्क्रिप्ट होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3D एरे कहते हैं। अब अगर हम उसका डिक्लेरेशन देखना चाहें, एक चीज़ लिख रही हूँ मैं, टेल मी व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस। दिस इज़ अ 3D एरे, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सबस्क्रिप्ट है, इसको हम कैसे बोलेंगे, इंटर डेटा टाइप है, ये तो मतलब समझ लो हमारा एरे हो गया। इसका मतलब होता है पेज, रो एंड कॉलम। एक चीज़ याद रख लो, पेज, तो इसको हम अगर बोलना चाहें तो हम ऐसे बोलेंगे कि सेकेंड एरे विथ 5 rows and 2 columns. Now element declaration in C language if you want to use. C, अगर हम पेज 1 की बात करें, देखो तो इसमें कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पेज 2 के एलिमेंट्स की बात करें तो 10, 11, 12, 13 ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब हम अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो सकती है एरे की, दे आर यूज्ड टू स्टोर लिस्ट वैल्यू। देन सेकेंड इज व्हाट, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड द थर्ड इज व्हाट, दे आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट, array are used to implement sorting algorithms. Then fifth, arrays are used to implement stacks and glue. Sixth is what, array they are used to represent Sparks matrix. अब Sparks matrix क्या होती है, I will tell to you afterwards. Okay, right now I am teaching you data structure, afterwards I will teach you. Now first of all, now we are starting with operations only in an array. Like in this we have traversing, deletion, we have sorting, insertion, searching and merging and all. So in this now C++, codings and algorithms and programming, now I will teach you. Now that I will teach you in next video, just because it contains certain little bit of coding and understanding of the algorithms and all. So in the next video I will cover traversing, insertion, deletion, sorting, searching, merging, everything, and the next video you have to pay attention in it. ये तो बच्चों वाला था, लेकिन नेक्स्ट वाला बच्चों वाला भी है, लेकिन इन दैट अगर एक गलत हो गया तो नहीं आता है, एरर आ जाता है। एग्ज़ाम में तो आप कुछ भी लिख देंगे, एंड रटने में जो एक्सपर्ट है उसको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। Alright, no one needs laptop if you are good in rectification. Alright, and especially in labs there are computers. So if you in computer lab there are computers. So if you are not able to afford laptop, then there is no need. You can go in computer lab and just do whole practice, and paper and pen लेकर ही if you write and do coding and all, you will be able to gain marks. I completed my class 12 like this only, and even lab computer में तो मेरा प्रोग्राम ही रन नहीं होता था। ओके, तो मतलब पेपर पेन लेकर भी अगर you write answers
skills, then also you can bring marks, and marks are not now sufficient, skills matters. What? So class 12 नहीं है ये मेरा भी, I understand. So I also I don't have laptop, so what I do, I go to computer lab and do all the programming. Okay, so now in the next video I will tell to you. Thank you so much. अगर समझ में आया, so please like and subscribe, and in the next video everyone have to pay attention and listen everything very nicely. Bye bye.